Yeah. Good morning, everybody. Am I audible now? Yes, sir. Good morning, sir. Okay. So today I'm going to start computer networks, right? The screen is visible. The screen is visible. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So first, tell me. Can you tell me what do you mean by network? What is network? Anybody? Yeah, you have already learned computer networks, right? So what do you mean by networks? Uh, Sir, hello. Am I Yes. audible? Yes. Sir, network is something by which the devices can be interconnected with each other. Okay. Good. So we can say two or more devices are connected together. Yes or no? Yes or no? Means set of devices or two or more devices are connected together, right? So that is called network, right? Now tell me, you have already learned about the network topology, right? What do you mean by topology? You have already learned this thing, right? Sir, hello. Yes. Topology is actually the map or something the style by which the devices are interconnected with Listen each other. carefully. Example, mesh topology, star topology, or bus topology. Yes. Topology means just you can say layout. What do you mean by topology? You can say layout. इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है ये सब याद रखना अच्छे से. Layout, right? Network topology means layout of your computer network. Layout of your computer network. ये क्या बताता है? ये हम लोग को बताता है कि हमारा डिवाइसेस और केबल्स किस तरीके से कनेक्टेड है हमारे नेटवर्क में, राइट? इट शोज devices and cables are connected. How devices and connected cables are connected, right? So we can say Sir, your writing is not visible. my writing is not visible. Layout. No, sir. No, sir. Your writing is not No, visible. sir. Just a minute. Now it's visible. Yes, sir. Now it's visible. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So network topology means what? Network topology specifies the layout of your computer network. Layout of your computer network, right? So there are lots of types of network topology are there. So I'm discussing one by one. So first, have you heard about the mesh topology? Yes or no? Yes, sir. मेश टोपोलॉजी. सो पहले क्या मैंने क्या बताया, टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमारा नेटवर्क किस तरीके का दिखेगा, मतलब हमारा नेटवर्क का लेआउट कैसा है. तो इन केस ऑफ मेश टोपोलॉजी वी आर गोइंग टू कनेक्ट आवर कंप्यूटर. सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिवाइसेस आर देयर. आई एम अज्यूमिंग दैट देयर आर 4 डिवाइसेस, राइट? नाउ आई वांट टू क्रिएट नेटवर्क यूजिंग मेश टोपोलॉजी. टोपोलॉजी मींस क्या बोले, लेआउट बताता है, राइट? एम आई राइट? लेआउट बताता है. So in case of mesh topology, if you are using mesh topology, in that case, each and every computer should be connected individually. We suppose this computer, so we have to connect individually to each and every computer. Is that clear? Now come to the this computer part. So ये इससे connected है, यहाँ connected होगा, यहाँ connected होगा, इसको देखो, यहाँ connected होगा. Means in case of mesh topology, which all nodes are individually connected to other nodes. Nodes means what? Computer. Nodes means what? Your computer. Is that clear?
Yes or no? Any doubt till here? No, sir. So in this topology, lots of cable are using. Yes or no? Lots of cable are using. So cabling cost will be high in this topology. Cabling cost will be very high. और क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसका? सपोज ये कनेक्शन किसी तरीके से ये वायर खराब हो गया है, राइट? तो क्या हो गया? बाकी तो प्रॉब्लम हो गया, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत सारा मुश्किल। यहाँ पे तो 4 सिस्टम्स हैं, राइट? हो सकता है कि देयर आर 15 सिस्टम्स आर कनेक्टेड टुगेदर। इन दैट केस क्या होगा? आइडेंटिफाई करना भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि किस वायर में प्रॉब्लम है, कौन सा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, राइट? तो अगर एक वायर काम नहीं करता है तो नेटवर्क मेरा ठप बैठ जाता है, काम नहीं करता उस केस में। इज दैट क्लियर? तो वन मोर थिंग, रिमेंबर दैट इंटरव्यू में यहाँ पे फंसाता है, एक ध्यान से सुनना चाहिए। मेश टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ऑल नोड्स आर कनेक्टेड इंडिविजुअली, एम आई राइट? तो क्या ये मेश टोपोलॉजी हो सकता है? सपोज देयर आर 4 सिस्टम्स, 1 2 okay 3. In this case here I have connected only, in this case I have connected here only. Is this a mesh topology? Yes or no? No, sir. Yes, sir. Sure. No, sir. Individually तो connect है नहीं. ध्यान से देखना, this is interview questions, this is interview questions. No, sir. This is not. No, this is not mesh. No, sir, no. No, sir. No, this is called partial mesh topology, right? Tell me one thing, except mesh topology, in case of each and every topology we have some hub or switch like this in devices, but here no devices are there. Our target was implementing mesh topology only, right? Our target was implementing mesh topology only because we have connected each and every node of first computer. In second computer we have already connected with 2 computers, right? Only one is left, right? So we are going to implement here mesh topology only, but this is partial, right? So this is mesh topology, but we can say this is partial mesh topology, क्योंकि इस तरीके से और कोई topology तो दिखता नहीं है। तो if in interview room they will ask what kind of topology is there, और अगर एक ही भी connection message है, in that case you can say this is partial mesh topology. Is that clear? Partially connected mesh topology is there. Any doubt? Is that clear? Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. Yes. So ये ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना अच्छे से, इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। Okay, so next. Star topology, right? Sorry. In case of star topology, एक सेंट्रल होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होता है, ठीक है? सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि एक सेंट्रल डिवाइस है मेरा, दिस इज आवर सेंट्रल डिवाइस, राइट? अब यूजिंग दिस सेंट्रल डिवाइस all computer are connected. Suppose computer are there 2 3 4 and 5 computer are there, so all computer will be connected through this central device only. Is that clear? So in case of a star topology, all computer, all nodes are connected to a central device, connected to a central device. Is that clear? This is your central device. Okay. अभी एक चीज गौर करो, सपोज ये कनेक्टेड नहीं है, तो बाकी ये सब के कम्युनिकेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? यस और नो? No, sir. नो। जब तक सेंट्रल डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, हमारा कनेक्शन डाउन नहीं होगा, काम करते रहेगा। अगर एक कनेक्शन फेल भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है।
Is that clear? Yes or no? So कंपेयर टू मेश टोपोलॉजी ज्यादा वायर लग रहा है या कम वायर लगेगा इसमें? बहुत ही कम लगेगा. Yes or no? Because we are connecting single with directly with say central device, right? So हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, तो कंपेयर टू मेश टोपोलॉजी यूजिंग ऑफ लेस वायर. Is that clear or any doubt? What is the disadvantage? Tell me. If this central device will fail, what will happen? अगर ये सेंट्रल डिवाइस तुम्हारा डैमेज हो गया या फेल हो गया तो व्हाट विल हैपन? Whole network will also be The damaged. entire network will be. Entire network will be failed. Right? Entire network will be failed. अच्छा, इंस्टॉलेशन कैसा है इसका? स्टार टोपोलॉजी का आसान है या टफ है? खुद सोच के देखो, इंस्टॉलेशन कर पाओगे तुम लोग? Easy, sir. Just easy, right? One central device will be there. Each and every computer will be connected to this device. That's it. Is that clear? Yes or no? Okay. और क्या टोपोलॉजी है? एक है तुम्हारा रिंग टोपोलॉजी. Have you heard about the ring topology? Ring topology, right? नाम से पता लग रहा है क्या करना है तुम्हें. सपोज कंप्यूटर है, दूसरा 3 समथिंग कुछ इस तरीके से कंप्यूटर है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये रिंग फॉर्म कर रहा है, राइट? दिस इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी. ठीक है. अच्छा, ऐसा नेटवर्क रियली में कहीं देखे हो क्या? हैव यू हर्ड अबाउट द रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क? यस और नो? So LANs are not ring topology. मैं बताऊंगा LAN किस तरीके से होता है, कौन सा. कोई एक्स्ट्रा अदर नेटवर्क बताओ कि जहां पे तुम जानते हो कि रिंग टोपोलॉजी काम करता है. Have you heard about the SONET? इंटरव्यू में पूछा जाता है, याद रखना. सोनेट नेटवर्क जो होता है तुम्हारा एग्जैक्टली रिंग टोपोलॉजी होता है, और वीकेंड से एसडीएच नेटवर्क भी कहा जाता है एक. ठीक है. ये दो इस तरीके का नेटवर्क है, याद रखना. ये पूछा जाता है कि गिव मी द वन एग्जांपल ऑफ रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि बहुत कम लोग, रेयरली यूज होता है रिंग टोपोलॉजी, बहुत ही रेयरली यूज होता है क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है. ठीक है. तो इसका एग्जांपल पूछा जाता है, याद रखना. इसका एग्जांपल है सोनेट नेटवर्क, एसडीएच नेटवर्क. यस. Can you please repeat the term SDH? What does it stand for? Yes, I'm explaining. Just wait once. I'm explaining one by one. So their ring topology are very expensive, very expensive. So अभी तुम बताओ कि इसका यही रीजन है कि तुम बहुत कम देख पाते हो इसका एग्जांपल, राइट? तो इसका एग्जांपल कुछ लिमिटेड है. तो इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाएगा कि टेल मी, गिव मी द वन एग्जांपल ऑफ ring topology. So in that case you can give SONET or SDH network. Now SDH, have you heard about the SDH network? Anybody? Yes or no? Synchronous digital hierarchy. Okay. So this is one kind of network. It is used by ring topology. This network is used ring topology. Is that clear? You can say SDH, synchronous digital hierarchy network, or SONET network. Is that clear? Yes, sir. Okay. And tell me one thing, installation is easy or tough? देखने में तो आसान लग रहा है, बट क्या है, क्या कर सकते हो? Sir, it's very tough. Very tough, right? Difficult to install ring topology. इतना भी But आसान why, नहीं है. sir? Because मैंने क्या बोला कि रिंग फॉर्म में हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड रहेगा. खुद सोच सकते हो कि बहुत सारा डिवाइस को एक साथ कनेक्टेड सर्कुलर वे में करना आसान है या टफ है? कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस है जिसके हेल्प से तुम कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, राइट? अभी क्या होगा और प्रॉब्लम देखो, सपोज दिस लिंक हैव डिस्कनेक्टेड, तुम्हारा पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा.
यस और नो? हाँ हाँ हाँ। और सर एक्सपेंसिव किस लिए होगा? सॉरी, एक्सपेंसिव किस लिए होगा? एक्सपेंसिव इसलिए होता है, देखो यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इन रिंग टोपोलॉजी, एम आई राइट? अभी देखो एक कंप्यूटर है यहाँ पे, मान लेते हैं हम थोड़ा देर के लिए, सेकेंड कंप्यूटर यहाँ पे। अभी देखो तुम्हारा सिस्टम जो है, अगर हमको कोई एक सेंट्रल हब या स्विच के थ्रू कंप्यूटर कनेक्ट करना हो तो सिंपली एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, यस और नो? यस और नो? अभी देखो रिंग टोपोलॉजी में एग्जैक्टली होता क्या है, सपोज 2 से ज्यादा नोड होना चाहिए, पहला नंबर, राइट? अब क्या है, सिंगल कंटिन्यूअस पाथ शुड बी देयर। ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल पाथ से हो सकता है, मल्टीपल पाथ से नहीं हो सकता है। यही मतलब है ना? ये सिर्फ कनेक्शन सर्कुलर का मतलब ये नहीं समझो कि डायरेक्टली एक वायर कनेक्ट कर दिया है। कम्युनिकेशन शुड बी सिंगल पाथ होना चाहिए कम्युनिकेशन का। सपोज ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर कम्युनिकेट करना चाहता है, ये दोनों, तो एक ही पाथ, यही पाथ हम फॉलो कर सकते हैं, इस तरह से नहीं आ सकते। मीन्स ओनली सिंगल कंटिन्यूअस पाथ शुड बी देयर ट्रांसमिशन। अब सोच के देखो कि ये टफ है या नहीं है करना। नाउ अभी इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे बाकी नेटवर्क में क्या होते हैं, एक सेंट्रल सर्वर होते हैं, राइट? इसको कोई भी है करने के लिए, बताओ तो, कंट्रोल करने के लिए कोई भी सेंट्रल सर्वर? नो, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? सब आपस में एक दूसरे से, देयर आर नो सर्वर, नो सिंगल सर्वर वाज देयर फॉर कंट्रोलिंग ऑल सिस्टम्स। ये खुद इंडिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई रिंग टोपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी टफ टू इंस्टॉल एंड मैनेज। मैनेज करना इसको बहुत टफ है, रीजन यही है, मैनेज करना इसलिए टफ है कि कोई भी एक फेल हो गया तो कहां खोजते चलोगे कहां पे कम्युनिकेशन फेल हुआ है, राइट? इज दैट क्लियर? सर इसका कोई एडवांटेज है इसका टोपोलॉजी एडवांटेज, यूज करने का? हाँ एडवांटेज है ना। अगर कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है तो ये क्या है, सिंगल पाथ है, कोई कहीं से और कुछ भी ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। सपोज फर्स्ट कंप्यूटर आर कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर 3 दिस टाइम, अभी यहां से 2 किसी को पैकेट को सेंड नहीं कर सकता है, इजिली कम्युनिकेशन हो सकता है क्योंकि देयर आर फिक्स्ड सिक्योरिटी पाथ। मेनली, यस, सिक्योरिटी मेनली। मेनली सिक्योरिटी, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज एक्सपेंसिव। इज दैट क्लियर? Sir, can you repeat this one? यस, व्हिच पार्ट? Sir, the advantage. Okay, advantage. Okay, I'm explaining again. Okay. ओके, मैंने क्या बोला कुछ देर पहले, रिंग टोपोलॉजी, इसमें कोई भी एक सेंट्रल सर्वर नहीं होता है जो कि कंट्रोल करे सारे कनेक्टिविटी को, am I right? अभी देखो हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? अभी देखो यहाँ पे सपोज दिस इज कंप्यूटर 1 2 3 4 5, सिंगल पाथ इज देयर, yes or no? Single path is there. So I want to communicate with 1 to 4, all right? हम क्या बोले, सिंगल पाथ इज देयर for transmission of any data or any packet, right? So in this case, when computer 1 are communicating with computer 4, that time can we communicate computer 1 to computer 3? Just tell me, yes or no? Is that possible? नो सर। No, sir. No, because there are single path. मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना कि इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, मैं लिख देता हूं, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, पहला पॉइंट ये याद रखना है, सेंट्रल सर्वर इज नॉट देयर। तो अगर सेंट्रल सर्वर नहीं दिया हुआ है तो सारे कंप्यूटर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? इज दैट क्लियर? अब व्हेन यू आर क्रिएटिंग रिंग टोपोलॉजी, one thing you have to clear in mind, you have to form single communication path. You have to form single communication path.
This is main thing about the ring topology. मीन सिंगल कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए, ब्रेक भी नहीं होना चाहिए. कम्युनिकेशन पाथ स्लैश, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ याद रखने के लिए, कंटिन्यूअस भी, पाथ शुड बी कंटिन्यूअस आल्सो, राइट. सो पाथ शुड नॉट बी ब्रेक्ड. सो ट्रांसमिशन के लिए एक सिंगल पाथ होना चाहिए. तो अभी देखो तुम, अगर 1 और 4 से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये सिंगल पाथ के थ्रू ही पैकेट ट्रांसमिट होगा मेरा. इज दैट क्लियर? अब उसी टाइम पे 1 और 3 कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पॉसिबल जो कि है नहीं, क्योंकि ये पाथ ऑलरेडी बिजी है. क्या बोले? देयर विल बी सिंगल पाथ, तो सिक्योरिटी विल बी इनहेंस्ड. थोड़ा स्लो होगा बट सिक्योरिटी विल बी इनहेंस्ड. यस और नो? इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट. ओके, ये तो सिंपल, ये तुम लोग पढ़े हुए होगे. बस टोपोलॉजी. What do you mean by bus topology? Tell me. Anybody can tell me. The bus topology is a type of topology in which there is a central cable line and all the devices are connected through this cable line. Means one single cable will be there, right? And using this cable, all network systems are connected in network, right? Like suppose यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे भी एक कनेक्टेड हो गया, ठीक है, यहाँ भी एक कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, मतलब लॉट्स ऑफ सिस्टम आर कनेक्टेड. The single wire will be there, and using that wire all systems are connected together, right? This is called bus topology. Is that clear? Yes or no? So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तुम्हारा हो गया सेंट्रल केबल, ये हमारा नोट्स हो गया, और कंप्यूटर, नोट्स और कंप्यूटर, ठीक है. ओके, सो आवर सेंट्रल केबल वर्किंग एज ए कम्युनिकेशन मीडियम. ये हमारा मीडियम है, इसी के थ्रू सबको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, राइट. नाउ अभी सोचो इसका डिसएडवांटेज क्या है, बताओ तो. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका क्या है? टेल मी. सर सेंट्रल केबल खराब हो जाएगा तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा. बिल्कुल, अगर इस वायर में कहीं भी परेशानी हुई तो हमारा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा. यस और नो? एम आई राइट? हाँ. अच्छा, और एक चीज बताओ, सपोज ये हमारा सिस्टम है, सारा कनेक्टेड है, जैसे से ये वायर बड़ा होगा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे जो नेटवर्क का स्ट्रेंथ है धीरे धीरे डाउन होते जाएगा. यस और नो? तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग इसमें बस टोपोलॉजी में? हाउ वी कैन कनेक्ट कंप्यूटर्स. एक डिवाइस है, कौन सा डिवाइस यूज होता है? ये नेटवर्किंग डिवाइस है जो तुम लोग जानते हो अच्छे से उसके बारे में. इन बस टोपोलॉजी व्हिच नेटवर्क डिवाइसेस आर यूज्ड मेनली? टेल मी. Have you heard about the repeater? Have you heard about the repeater? Yes or no? Repeater नहीं पता तुम लोग? Sir, Yes. I have Yes. a question. Yes, tell me. Sir, in bus topology, if a connection is failed, suppose a device is connected to the central cable, Okay. then does the whole connection, does the whole network fail? Yes, suppose there are problem with this wire. यहाँ पे कट हो गया. Assume No, करो sir, यहाँ पे. I am not telling that wire, central cable. अगर वो बिगड़ जाएगा तो वो सब वो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा. Yes. I am talking about the devices connected to that central Yes. cable. Then no issue. No, अगर सिर्फ डिवाइसेस अगर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फिर. हाँ, वही ठीक. जब तक सेंट्रल केबल में प्रॉब्लम नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो अभी वही हम आ रहे हैं कि डिवाइसेस पे सपोज करो कि यहाँ से एक ये सिस्टम नंबर 1 है, assume that system number 1 is there and system number 10 is there or 100 is there. I'm assuming that. अभी देखो सिस्टम नंबर 1 एक मैसेज भेजा यहाँ से ABC something. They are transmitting this message. सिस्टम 1 से कहाँ जाना है, इसको 100 पे जाना है. तुम्हें भी पता है कि नेटवर्क में जब मेरा मैसेज, मेरा डाटा ट्रांसमिट होता है तो धीरे धीरे वो वीक होता है. यस और नो? जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा धीरे धीरे वीक होते जाएगा. एम आई राइट? यस और नो? Yes, sir. हाँ.
So can you please repeat this part? Yes, suppose this is system number 1. I want to send some message from system number 1 to system number 100. तो क्या हुआ, इसी मीडियम के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होगा, यस और नो? ये डाटा कहाँ, इस वायर के थ्रू जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो जब ट्रेवल करेगा डाटा ये कुछ दूर तक, तो क्या प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे तुम्हारा जो सिग्नल भेज रहे हो ना, तुम डाटा भेज रहे हो, मींस व्हाट, यू आर सेंडिंग सिग्नल, एम आई राइट? तो वो सिग्नल क्या हुआ, धीरे धीरे वीक होते जाएगा समय के साथ। अभी क्लियर हुआ? सिग्नल तो तुम एक ट्रांसमिशन मीडियम से भेजोगे, एक वायर से, तो जहां स्टार्टिंग पे जितना स्ट्रॉन्ग था तुम्हारा सिग्नल, कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट में उतना स्ट्रॉन्ग रहे, वो धीरे धीरे वीक होते जाता है। इज दैट क्लियर? सो उस केस में बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग बस टोपोलॉजी में? कौन ऐसा डिवाइस है जो यूज होता है इससे बचने के लिए? वो है रिपीटर। मींस ईच एंड एवरी कंप्यूटर इन बस टोपोलॉजी इज कनेक्टेड यूजिंग रिपीटर। रिपीटर का काम क्या है? रिपीट करता है। सोचो कि सपोज ये वायर है, यहाँ एक रिपीटर लगा दिए हो तुम। रिपीटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, याद रखना हमेशा, रिपीटर है, ठीक है। अभी क्या हुआ, जैसे इसको ये सिग्नल मिला, यहाँ जो सिग्नल तुम भेज रहे हो रिपीटर के पास आया, अच्छा इसको मिला, वीक हो गया, ये तुरंत में इसको क्या करेगा, सिग्नल को तुम्हारा रिपीट मार देगा, मतलब कि डबल कर देगा। तो यहाँ पे तुम्हारा सिग्नल रिफ्रेश हो जाता है, फिर यहाँ से स्ट्रांगली चलता है। तो हर एक कुछ देर के बाद क्या होता है, एक रिपीटर लगाया जाता है। अगर लंबा वायर कनेक्टेड है तो उस केस में हर एक कुछ डिस्टेंस पे हम लोग रिपीटर यूज करते हैं, ताकि मेरा सिग्नल जो होता है एम्पलीफाई होता रहे कुछ देर पे। यहाँ पे आया, यहाँ पे एम्पलीफाई कर दिए हम लोग, फिर यहाँ आया, कुछ दूर गया, वीक हो गया, फिर यहाँ एम्पलीफाई कर दिया, एक रिपीटर लगा दिया। इज दैट क्लियर? तो रिपीटर क्या करता है, एम्पलीफाई आवर सिग्नल। इज दैट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. Yes sir. तुम लोग एक फेमस रिपीटर का नाम सुने हो, टेलीफोन रिपीटर पहले होता था, याद है? कभी सुने हो नाम उसके बारे में? वो हम लोग बात करने के लिए टेलीफोन लाइन में लगा हुआ होता था, जो कि एम्पलीफाई करता था उस सिग्नल को, ठीक है। तो उसी तरीके से बस टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर किसके हेल्प से कनेक्टेड रहता है, यूजिंग रिपीटर। ये याद रखना, ये पूछा जाता है। इज दैट क्लियर? तो अब बस टोपोलॉजी हेल्पफुल किसके लिए है, स्मॉल डिवाइस, मतलब कि छोटा सा नेटवर्क अगर क्रिएट करना हुआ छोटा सा, तो इन दैट केस इट इज ओके, ठीक है। कम नंबर डिवाइस है तब बस टोपोलॉजी यूज करो। डन? एनी डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट द ट्री टोपोलॉजी? ये बहुत कम जगह बताया जाता है, मैं हिंट कर दे रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू पूछा गया है एक जगह। हैव यू हर्ड अबाउट द ट्री टोपोलॉजी? Sir, can I try? I think I know. यस, टेल मी। Actually, there may be some node. Okay. Just like the data structure we have studied tree, there may be some root, that is the main, that is the top device, Okay. and there will be the other nodes which will be connected to that root. Okay. और कोई बोल सकता है कुछ इसके बारे में? Hello, sir. यस, टेल मी। Sir, it's basically combination of star and bus topology. ओके, यस, हाँ सही है। And sir, it is all connected to a single bus. ओके, सिंगल बस मींस व्हाट? Sir, like it is divided into segments that are known as star networks. And if one segment is damaged, there is no effect on the other segments. वन सिग्नल डैमेज नॉट इफेक्ट ऑन अदर्स। अच्छा, कह सकते हो। ओके, देखो एक्चुअली ट्री टोपोलॉजी होता क्या है, पहले ये समझो। तुम सही बोले हो एक चीज कि ये बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का क्या है, कॉम्बिनेशन है। बस टोपोलॉजी का मतलब क्या पढ़े हम लोग, ये बताओ। स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या पढ़े? स्टार टोपोलॉजी क्या है तुम्हारा, एक सेंट्रल हब होगा, राइट। सेंट्रल हब के साथ क्या रहेगा, हर एक सिस्टम क्या रहेगा हमारा, कनेक्टेड रहेगा। यही होता है ना स्टार टोपोलॉजी में, यस और नो? Yes, sir.
राइट। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, हर एक सिस्टम मेरा कनेक्टेड है सेंट्रल हब से। अब क्या बोले, ट्री टोपोलॉजी में क्या है, बस टोपोलॉजी का भी मिक्सचर है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि बस टोपोलॉजी तुम्हें पता है, बस टोपोलॉजी कैसा होता है, यही होता है ना, हाँ या ना, Yes, sir. दिस इज आवर बस टोपोलॉजी। अब क्या ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों को कंबाइन करोगे तो कैसा फॉर्म होगा, सोच के देखो क्या बनेगा, कैसा नेटवर्क बनेगा ये, बोलो। इसका एडवांटेज क्या था, इसका एडवांटेज क्या था, बस टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या था, टेल मी। और इसका स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या था, ये पहले बताओ, अभी तुरंत बताएं, बस टोपोलॉजी का क्या है एडवांटेज, बोलो, सोचो थोड़ा सा। Sir, in case of bus topology, since the central cable is used and all the devices are connected through the central cable, सेंट्रल any- केबल है तो इट विल बी फास्ट, यस और नो, yeah, the transmission of signals will be very fast, and if any one of the devices gets disconnected, the network will not be felt. यस। तो ये क्या, सिंपली हमको ये जानना ये फास्ट है ना। अभी सेंट्रल हब में जब तक इसका एडवांटेज क्या था, जब तक सेंट्रल हब में परेशानी ना हो मेरा नेटवर्क डाउन नहीं हो सकता है एट एनी कॉस्ट, यस और नो। जब तक सेंट्रल हब में प्रॉब्लम ना हो हमारा सिस्टम नेटवर्क हमारा डाउन नहीं हो सकता है, एम आई राइट, यस और नो। Yes. सो अभी देखो क्या किया है, तो ये तो फास्ट था अपना, तो इसका पकड़ लिया ये कि तुम्हारा बस टोपोलॉजी का वायर हम कनेक्टेड कर लिया। अब स्टार टोपोलॉजी को तुम्हारा बस टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट किया है, मतलब क्या किया है कि ये केबल है तुम्हारा, सेंट्रल डिवाइस कनेक्टेड होगा, ठीक है, फिर तुम्हारा कंप्यूटर सारा कनेक्टेड होगा, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा, सोच के देखो, यस और नो। Yes, sir. तो क्या ये ट्री फॉर्म कर रहा है, इज दैट क्लियर, यस और नो। Yes. Sir. तो ये तुम्हारा ट्री टोपोलॉजी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, गौर करो तो, मेन बस के ऊपर, राइट। मतलब कि बस टोपोलॉजी का जो केबल था ठीक उसी पे डिपेंड कर रहा है, इज दैट क्लियर नाउ, यस और नो। अगर ये ब्रेक होगा तो ट्री टोपोलॉजी में याद रखना, इन केस ऑफ ट्री टोपोलॉजी इफ bus cable will be break, in that case full network will be damaged, is that clear now, yes or no। अभी आया समझ में, सिंपली क्या किया यहाँ ट्री टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी को हम लोग बस जो होता है बस केवल ट्री टोपोलॉजी का उसके थ्रू कनेक्ट कर दिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अभी आया समझ में सबको या कोई प्रॉब्लम है, टेल मी, एनी डाउट, Yes, sir. क्लियर है, आगे बढ़े, Yes, sir. ओके ओके, टेल मी, कम्युनिकेशन, कितने तरह का कम्युनिकेशन होता है, तुम लोग को पता है सब, इंटरव्यू के लिए जो जरूरी है वही चीज से पढ़ाएंगे। हैव यू हर्ड अबाउट द हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मीडियम, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंप्लेक्स, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। Sir, the transmission of signal goes in only one direction. Only one direction means suppose this is sender and this is receiver, so at a time only sender can communicate with the receiver, yes or no, at a time कभी भी दोनों साइड से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, सिर्फ एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा इसमें, इन केस ऑफ सिंप्लेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ डुप्लेक्स, Communication is in both direction, but At a not at the time? same time. yes, at a time only in one direction, is that clear, at a time only in one direction, suppose this is sender, this is receiver, suppose sender are communicating with the receiver, in that time
रिसीवर कैन नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द सेंडर। इज दैट क्लियर? सेम टाइम पे नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद रिसीवर कम्युनिकेट कर सकता है जब सेंडर स्टॉप करेगा कम्युनिकेशन। तब मीन्स सिर्फ एक कम्युनिकेशन मीडियम रहता है, सेंडर कैन कम्युनिकेट विद रिसीवर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट विद सेंडर, बट एट ए टाइम दोनों नहीं कर सकते एक दूसरे से कम्युनिकेट। फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब है? तुम्हारा मोबाइल फोन सेपरेट कम्युनिकेशन चैनल रहता है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं सेंडर एंड रिसीवर एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। Sir, यस so can you please tell us the example of simplex? यस, सिंप्लेक्स। सपोज हैव यू हर्ड अबाउट द पेजर? पेजर नाम सुने तुम लोग पेजर का? पहले एक कम्युनिकेशन मीडियम हुआ करता था। No, sir. तो पेजर एक का क्या चीज है, गूगल में पढ़ना। ठीक है, पेजर बहुत यूज होता था पहले। पहले लोग कम्युनिकेट ही पेजर के थ्रू करते थे, मैसेज भेजने का काम होता था पेजर का। इज दैट क्लियर? तो गूगल कर लेना, पेजर के बारे में समझ में आ जाएगा। और हाफ डुप्लेक्स का समझ ही सकते हो, वॉकी टॉकी। हैव यू हर्ड अबाउट द वॉकी टॉकी? Yes, sir. जो बॉर्डर पे बात होता है, तो हाफ डुप्लेक्स हो गया। फुल डुप्लेक्स तुम्हारा मोबाइल फोन हो गया। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ नेटवर्क तुम लोग अच्छे से जानते हो। ये क्या पढ़े हो? एक लैन पढ़े हो, एक मैन पढ़े हो, और एक क्या पढ़े हो? वैन। ये तीन पढ़े हो ना? यस और नो? हैव यू हर्ड Yes, अबाउट sir. दिस लैन मैन वैन? इसके अलावा कोई नेटवर्क पढ़े हो तुम लोग? हैव यू हर्ड अबाउट द हैन? Yes, sir. व्हाट इज हैन? हाउस एरिया नेटवर्क। मैं एक एक करके रिपीट करूंगा। हैव यू हर्ड अबाउट द पैन? यस और नो? Personal area network. Yes. Have you heard about this? Can? Yes or no? Campus area network. Have you heard about the GAN? Global area network. So, हम लोग ये सब पढ़ेंगे, लैन मैन वैन हैन पैन कैन कैन। इसके बारे में बेसिक आइडिया ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो पाए। ओके, फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विथ लैन। व्हाट डू यू मीन बाय लैन? Local area network. लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म मैंने नहीं पूछा था, क्या समझते हो? अगर तुम्हें एक सपोज करो कि इन इंटरव्यू रूम दे विल आस्क कि एक छोटा सा रूम है, तुम्हें लैन वहां पे कनेक्ट करना है, लैन लगाना है। ठीक है, तो क्या क्या डिवाइसेस तुम्हें जरूरत पड़ेगी और किस तरीके से तुम लैन क्रिएट करोगे, तुमको समझाना पड़ेगा। तो क्या आंसर करोगे बता दो? हाउ Sir, वी कैन क्रिएट लैन? sir, to create LAN, we have to uh, make use of repeater. इन केस ऑफ लैन वी हैव टू यूज रिपीटर। व्हाई? What is the Sir, need of because LAN, in case of LAN, it Yes. is local area network where the devices are interconnected of a particular locality or Okay. local area, and in this case, the transmission of signal takes place across the devices But connected. where we can use LAN? LAN we can use only in a small geographical area. Yes, Am I sir. right? तो वहां पे But we can use, repeater as well, na, to amplify the signal. बट व्हाट इज द नीड ऑफ रिपीटर हियर? क्योंकि एक छोटा सा रूम तुम्हें दिया है, ठीक है, उसी रूम हाँ. में तुम्हें लैन बनाना है। सोचो, हाँ. तो वहां पे रिपीटर क्यों यूज करेंगे? रिपीटर हम क्या बोले, जब लॉन्ग एरिया में तुम्हारा एक वायर जा रहा है, लंबे दूर तक जा रहा है और उससे सिस्टम कनेक्टेड है हर कुछ दूर पे, ठीक है, उस केस में हम लोग रिपीटर का यूज करते हैं। एम आई राइट? कि अगर लंबे, बट एक छोटा सा रूम में तुम्हारा टास्क, तुमको क्या टास्क दिया गया कि एक छोटे से रूम में तुम एक लैन बनाओ, या तुम अपने लैब, कॉलेज का लैब देख लो, लैब में हर एक लैब में लैन बना हुआ है, राइट? तो हाउ वी कैन क्रिएट लैन, ये तुमको समझाना है। वहां पे एक छोटे से स्कूल में या लैब में बनाने के लिए हमको रिपीटर की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगा? लैन कैसे क्रिएट होता है बताओ? देखो, वी कैन क्रिएट लैन यूजिंग टू डिवाइसेस, आइदर हब और स्विच। यानी कि हब एक जरूरत पड़ेगा और एक स्विच पड़ेगा।
हम लोग के लैब में जो जनरली यूज होता है लैन में हर जगह, ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं? देखो ये हब हुआ, सपोज यूजिंग हब वी हैव क्रिएटेड ए नेटवर्क। इस हब में बहुत सारा पोर्ट होता है, ठीक है, बहुत सारा कंप्यूटर तुम्हारा है लैब में रखा हुआ, हर एक पोर्ट से हर एक कंप्यूटर कम्युनिकेटेड किया हुआ रहता है। तो कुछ दिख रहा है स्टार टोपोलॉजी की तरह ये बन रहा है, यस और नो? एम आई राइट? ये एक नेटवर्क हुआ, ये एक लैन है। इज दैट क्लियर? यस और नो? दिस इज योर Yes, हब। sir. यूजिंग स्विच आल्सो वी कैन क्रिएट नेटवर्क लाइक दिस ओनली। हमारे लैब में जितने भी कॉलेज में लैब हैं सब जगह स्विच के थ्रू ही किया हुआ है। अब कहोगे सर दोनों तो सेम ही दिख रहा है, फिर डिफरेंस क्या हुआ? फेमस क्वेश्चन यहाँ पे आता है। Sir, in switch there are innumerable ports or there are many ports, but in hub there are not कोई two. दिक्कत नहीं, तो मल्टीपल स्विच लगा देंगे या मल्टीपल हब यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हमारे लैब में तो मल्टीपल स्विच यूज किया हुआ है, एम आई राइट? यस और नो? देखोगे लैब में एक बॉक्स बना हुआ है, ग्लास लगा हुआ है पूरा, ऊपर पे एक बॉक्स, उसमें बहुत सारा स्विच रखा हुआ है, हर एक स्विच से केवल एक निकला है, हर एक केवल पे एक नंबर लिखा हुआ है, और वो हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है एक दूसरे से। यही तो नेटवर्क है हम लोग का कॉलेज का, यस और नो? कोई गौर से देखे हो जाके, हर एक लैब में किया हुआ है उस तरीके से, ठीक है, तो वहां स्विच यूज किया है। तो हम लोग हब के थ्रू भी लैन क्रिएट कर सकते हैं, स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच? मेरा क्वेश्चन ये है, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच? पता है? यस और नो? The switch stores the MAC addresses of the devices which are connected to it, but hub does not. ओके गुड। देखो क्या होता है, हब जो होता है मूर्ख इंसान है, ठीक है, इसको कुछ अपना दिमाग नहीं है, हब के पास अपना माइंड कुछ नहीं होता है, ठीक है। सपोज दिस इज कंप्यूटर 1 2 3 4। 1 सपोज एक मैसेज भेजा है, बोला कि 3 को एक मैसेज सेंड कर दो, मेरा कुछ भी एक पर्सनल मैसेज वो भेजा है, ठीक है। पहले कहाँ जाएगा ये? हब के पास गया। हब इतना ही बुद्धिमान है, वो मैसेज को क्या किया, हर किसी को ट्रांसमिट कर दिया, 2 को भी दे दिया, 3 को भी दे दिया, 4 को दे दिया, प्राइवेसी गया यहाँ पे, खत्म। समझ में आया कि हब का क्या डिसएडवांटेज है? हब कोई भी पैकेट किसी को इंडिविजुअली नहीं भेज सकता है, वो क्या करता है, उसके पास आता है ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट मींस व्हाट? जितने भी नोड कनेक्टेड हैं सभी के पास वो मैसेज सेंड कर देता है। क्या सोचता है, अरे 3 के पास तो पहुंच ही जाएगा, दिक्कत क्या है, बट साथ में 4 और 2 के पास भी तो पहुंच रहा है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ हब। इज दैट क्लियर? बट इन केस ऑफ स्विच, स्विच थोड़ा सा बुद्धिमान है, ये एक टेबल मेंटेन करता है, ठीक है, हर एक सिस्टम नंबर के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस रहता है वहां पे। अगर हम सपोज 1 से 3 में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये चेक करेगा, अच्छा सिस्टम नंबर 3 का मैक एड्रेस क्या ये है, हाँ, उसके पास पैकेट से भेजा जाएगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। वी कैन क्रिएट लैन यूजिंग हब एंड स्विच बोथ, बट स्विच विल बी बेटर जहां Can जो you जरूरत please पड़ेगा। repeat that switch contains the cable? यस, स्विच क्या करता है, देखो यहाँ पे एक टेबल मेंटेन करता है। सपोज सिस्टम नंबर 1, उसका मैक एड्रेस मींस व्हाट? फिजिकल एड्रेस। हर एक डिवाइसेस का एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि एनआईसी पोर्ट पे होता है। मैक एड्रेस कहाँ पे होता है? एनआईसी पोर्ट पे होता है, ठीक है। वो क्या होता है, फिजिकल एड्रेस सबका फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। सिस्टम नंबर मैक एड्रेस, सिस्टम नंबर मैक एड्रेस, इस तरीके से ये स्टोर कर लेता है। सपोज 1 इज कम्युनिकेटेड विथ सिस्टम नंबर 3, स्विच के पास गया, किससे कम्युनिकेट करना है? सिस्टम नंबर 3 के पास। मैक एड्रेस मैच किया, हाँ यहाँ पे है, तो 3rd, तो सिर्फ इसमें वो ट्रांसमिट करेगा। टेबल से मैच किया, अच्छा मैक एड्रेस मैच किया, हाँ उसमें ट्रांसमिट कर देगा। इज दैट क्लियर? Yes, यस sir. और नो? डन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। तो अगर पूछा जाए कि कैसे लैन क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से लैन बना सकते हैं। दिस इज वन काइंड ऑफ लैन, ये भी एक लैन ही है, ठीक है।
तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, अगर तुम्हें हाँ सारा मैसेज को ट्रांसमिट करना है हर एक मेंबर के साथ, यू कैन गो थ्रू द हब, नो प्रॉब्लम, तुम लैन क्रिएट कर सकते हो। रिक्वायरमेंट इसका भी पड़ता है अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है। और अदरवाइज बाकी लैब वगैरह में स्विच ही जनरली यूज होता है हर जगह, ठीक है। एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। तो लैन जनरली कहाँ पे यूज होता है, छोटा सा एरिया के लिए हम लोग यूज करते हैं, लाइक स्कूल में यूज कर सकते हो तुम, कॉलेज में यूज कर सकते हो, हॉस्पिटल में यूज कर सकते हो, लाइक दिस। डन ना, एनी डाउट, एनी डाउट? ओके, सो मैन, मैन के बारे में पढ़े हो ना? मैन का मतलब क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब क्या हुआ इसका बताओ तो। ऑलरेडी पढ़ चुके हो लैन मैन वैन, मतलब कि मल्टीपल सिटी के नेटवर्क को कम्युनिकेट करना हो, एक साथ कनेक्ट करना हुआ, तो इन दैट केस यू कैन यूज मैन, ठीक है। और वैन कब यूज करते हैं, कंट्री बेसिस पे, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। अगर बहुत सारे कंट्री के नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करना हुआ, इन दैट केस यू कैन गो थ्रू द वैन। इज दैट क्लियर? ओके, हैंड मीन्स हाउस एरिया नेटवर्क, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, हैंड किसका टाइप है बता दो। हाउस एरिया नेटवर्क किसका टाइप हो सकता है, हैंड लैन का सर। लैन का, राइट। तो हैंड इज ए टाइप ऑफ लैन, राइट। बट ये क्या लैन क्या बोले, एक स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए था लैन, ठीक है। तो हैंड किसके लिए बनाया गया, होम एरिया नेटवर्क, हाउस एरिया नेटवर्क के लिए। घर के अंदर अगर पर्सनल कंप्यूटर फोन है सब कुछ है, उसको कम्युनिकेट करना हुआ तो यू कैन गो थ्रू द हैंड। पैन मीन्स क्या हुआ, पैन बता तो। पैन नाम से पता लग रहा है भाई, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये तो हमारे होम के लिए था, हाउस के लिए था, ये पर्सनल है। ये किसका टाइप है, ये भी लैन का ही एक तरह से टाइप कहलाएगा, ठीक है। इसका क्या होता है कि देखो, ये पर्सनल यूज के लिए नेटवर्क है, अभी इसका 15 to 16 मीटर, ठीक है, इसका रेंज है, ठीक है, 15 to 16 मीटर इसका रेंज है, जिसके बीच में एक नेटवर्क लैन एक क्रिएट किया जाता है, जो कि पर्सनली सिर्फ यूज के लिए बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैन कहते हैं। रेंज याद रखना 15 to 16 मीटर होता है, ठीक है। ये फिक्स नहीं होता है, पहले के सिस्टम में 10 मीटर होता था, फिर बढ़ा के किया था 14 या 13 या 14 था कुछ, ठीक है। अभी 15 16 के आसपास एरिया में कवर करता है, ठीक है। कैन पता ही है, कैंपस एरिया नेटवर्क। देखो जहां भी एक चीज याद रखना, हमेशा स्मॉल नेटवर्क का बात हो, जैसे कैंपस का बात करें या होम का बात करें, मतलब हाउस एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये सब क्या है, स्कूल का बात करें, कॉलेज का बात करें, क्या होता है, लैन ही तो यूज होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, एम आई राइट। तो ये सब बाकी किसके टाइप है, लैन के टाइप है, क्योंकि ये छोटे एरिया पे काम कर रहे हैं, राइट। ये कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस में क्या, छोटा सा एक कैंपस का हम बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर, यस और नो? सो these three are types of LAN only. CAN means campus area network, means we can connect devices among the full campus. That's it. Is that clear or any doubt? Any idea about the GAN? Am I audible? Am I audible? So it is a type of WAN. Yes. What is the use of GAN? Tell me. Just a minute. Yeah. अभी देखो visual. Now what is the use of GAN? GAN means what? Global area network. Name से पता लग रहा है. Global means what? Around the earth, sir. Means large area should be there, right? ये ग्लोबली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मिस इसका टाइप हो सकता है यस और नो, या फिर इसका टाइप हो सकता है, एम आई राइट, यस और नो? दोनों का टाइप हो सकता है। कैन मैन से भी हम गैन क्रिएट कर सकते हैं, वैन का भी गैन क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए हो गया, ये फिर तुम्हारा क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया।
तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी तुम गैन यूज करोगे, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, तो हम लोग किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे डिवाइस को? सैटेलाइट के थ्रू। और कोई ऑप्शन है? अब तो तुम अमेरिका से लेके इंडिया तक तो केबल तो नहीं खींचोगे। इज दैट क्लियर? तो हम लोग किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे? सैटेलाइट के थ्रू। तो हमेशा जब भी तुम गैन क्रिएट करोगे, ग्लोबल एरिया नेटवर्क क्रिएट करोगे, वी हैव टू कनेक्ट विथ सैटेलाइट। एनी डाउट टिल हियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सर कब पैन यूज करेंगे हम, कब कैन यूज करेंगे? देखो, अगर नेम से पता लग रहा है, हम क्या बोले कि हैन यूज होता है। देखो ये क्या क्या लैन का एक टाइप है, नेम रख दिया ऐसे, कुछ नहीं। क्रिएट तो होता है, लैन ही क्रिएट करते हैं हम लोग। एम आई राइट? ये क्या है? हैन का मतलब क्या बताया था तुमको? हाउस एरिया नेटवर्क। तुम्हें पता है कि कब ये हैन यूज होगा, कब पैन यूज होगा, तुम्हें पता है कब कैन यूज होगा। ये गैन कब यूज होगा तुम बताओ। सिर्फ ये सोचना है कि जब हमें बहुत सारे, सपोज करो कि एक नेटवर्क बनाना है, एक ऑफिस है मेरा यूएसए में, एक ऑफिस है बेंगलोर में, एक है कोलकाता। अब तीनों ऑफिस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट करना है। कैसे करोगे? बोलो। सर ज्ञान यूज कर। ज्ञान यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि नेटवर्क तो एक हो ही सकता है। ये एक्चुअली में एग्जांपल क्या है? वैन का एग्जांपल हुआ यहाँ पे, यस और नो? वैन का हाँ अगर सर। हाँ इस हाँ दोनों हाँ का बात करें तो किसका बात हुआ? मैन का हुआ। मैन बेंगलोर हाँ हाँ कोलकाता, हाँ ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं? ये तीनों मिला के एक कनेक्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? सैटेलाइट है अपना ऊपर पे, उसके थ्रू कनेक्टेड है तीनों। तो कौन सा नेटवर्क बना? ग्लोबल एरिया नेटवर्क। यस और नो? यस सर। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, सपोज करो कि मैं छोटा लेवल पे एक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज यूएम कोलकाता नेटवर्क। जूम कर लो, यूएम कोलकाता का नेटवर्क, एंड दिस इज आईएम कोलकाता नेटवर्क। अभी हम एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं कि सपोज करो कि उसका ईमेल ही हुआ, तो ईमेल सिर्फ यहीं से यूएम कोलकाता कैंपस में है या आईएम कोलकाता कैंपस में तभी ओपन हो पाए। तो मतलब दोनों को मिला के एक सिंगल नेटवर्क हम बनाना चाहते हैं। कैसे बना सकते हैं? क्या क्या तरीका है तुम्हारे पास? बताओ सोच के। ये सब बात ध्यान से सुनना है। इंटरव्यू में ये सब नेटवर्किंग से रिलेटेड इंटरव्यू होगा तो पूछेगा ये सब, ठीक है? ये सब मैन पूछा यूज जाए। कर सकते हैं। उतना बैठ के तुम तार खींचोगे तुम पूरा, मतलब न्यू टाउन से स्टार्ट करोगे तुम सॉल्ट लेक जाओगे तार खींचते हुए। ऑफिस और दूर है, चलो थोड़ा सा और दूर करते हैं, तो वायर खींचोगे बैठ के? सर इधर भी तो थोड़ा, नहीं नहीं नहीं। सर वैन यूज कर सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। क्यों? ये तो सेम सिटी में है, अलग सिटी में भी नहीं है, तो मैन का जरूरत नहीं पड़ रहा है, फिर वैन का क्यों? लैंड, कैसे? लैंड तो जरूरत पड़ ही सकता है लैंड। अच्छा, तो कैसे क्रिएट करेंगे? कुछ आइडिया तुम लोग बताओ। लैन का जरूरत पड़ा तो लैन कितने तरीके से हो सकता है? सिर्फ वायर्ड हो सकता है कि वायरलेस भी हो सकता है? सर वायरलेस, वायरलेस वी कैन सेट अप। यूज, देखो यही तो होता है। तो राउटर का क्या यूज है? राउटर से यूज कर सकते हैं। हाँ आया सर, समझ में? राउटर से। ये राउटर इसका हुआ, ये राउटर इसका हुआ, एक इमीडिएट राउटर है मेरा जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, बन गया एक नेटवर्क। यही तो करते हैं जनरली। तुम लोग पैकेट ट्रेसर में सिखाया गया हुआ ये चीज, आई थिंक पैकेट ट्रेसर मैं क्लास नहीं लिया था, कोई और सर क्लास लिए थे पैकेट। सर ये तो फिर लैंड का एग्जांपल हुआ। हाँ, तो क्या हुआ कि हम क्या बोले? लैन कितने तरह वायर्ड हो सकता है या वायरलेस भी सिर्फ हो सकता है? सोच के देखो। अगर हम तो तार तो नहीं खींचेंगे ना इतना दूर, तो यूजिंग राउटर वी कैन कनेक्ट। इज दैट क्लियर नाउ? यस और नो? यस सर। तो एक सिटी के दो ऑफिस को कनेक्ट इस तरीके से किया जाता है, ठीक है? ये पूछा जाता है। एक और अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तुम लोग सुने होंगे ना, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? VPN। हाँ, VPN। जनरली लोग इसको शॉर्टकट में ज्यादा जानते हैं। आईपी एड्रेस बदल देता है ना सर? हाँ,
क्या VPN का यूज क्या है? अब ये मत करना टोरेंट से डाउनलोड करने में भी सर यूज करते हैं, ठीक है। VPN का मेनली यूज क्या है बताओ तो, व्हाट इज द यूज ऑफ VPN? VPN कब और क्यों यूज करेंगे हम? सर अगर मान लीजिए हमें अपना लोकेशन कहीं और दिखाना हो, अच्छा, वो हमारा आईपी के ऊपर हमारा आईपी को मास्क कर देता है दूसरे आईपी से। गुड, मास्क कर देता है, गुड। अच्छा, नाम से पता लग रहा है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मीन्स प्राइवेट मीन्स व्हाट? ये एक क्या है? एक वैन है। ये पहला नंबर तो ये तो पता है तुम लोग को, ये क्या है? एक वाइड एरिया नेटवर्क है ये, एम आई राइट? और वैन में भी किस तरीके का वैन होगा? ये प्राइवेट होगा, यही तो वाइड एरिया नेटवर्क, प्राइवेट वाइड एरिया नेटवर्क ये है। अभी देखो, जब भी तुम VPN यूज करते हो तो क्या होता है? एक सिक्योर टनल बनता है, कम्युनिकेशन चैनल बनता है जो कि सिक्योर रहता है, ठीक है। तुम लोग कोई भी VPN से कभी कनेक्ट हुए होगे तो एक चीज चेक किए होगे, ये सिक्योर टनल बनता है जिसके कारण से क्या होता है? स्पीड भी हमारा स्लो होता है नेटवर्क का। यस और नो? कोई यूज किए हो VPN? हाँ सर। अगर तुम 60 Mbps का स्पीड ले रहे हो तो उसमें कितना Mbps का स्पीड आता है तुम्हारे? सपोज करो कि दिस इज सोर्स डिवाइस, ठीक है, डेस्टिनेशन। मैं छोटा सा थोड़ा सा राउट कर रहा है। हाँ, आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, थोड़ा सा हम साइड से समझने की कोशिश करते हैं एक अलग चीज। सपोज करो कि मैं एक इलीगल एक्सेस चाहता हूं इस नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, इस डिवाइस के ऊपर मुझे इलीगल एक्सेस है। तो पहला चीज क्या तुम्हारे दिमाग में आता है? क्या करना है? फर्स्ट थिंग क्या तुम्हारे माइंड में आता है? और मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, तुम्हें हैक करना है ये सिस्टम। आईपी First एड्रेस thing चेंज करना है फर्स्ट। हाँ, आईपी एड्रेस चेंज करना है फर्स्ट। किसका IP एड्रेस चेंज करना है? मेरा। तुम अपना सिस्टम का IP एड्रेस चेंज करना चाहते हो, हाँ, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? उसे एक चीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि दूसरा जहाँ पे मैं हैक करने का ट्राई कर रहा हूँ वहां से मेरा लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएगा। अभी देखो, जब भी VPN बनाते हो तो एक चीज देखो, तुम पुराना चीज से ये चीज आया है, गौर करना। जनरली लोग जो अच्छे हैकर होते हैं प्रॉक्सी चेनिंग यूज करते हैं यहाँ पे। हैव यू हर्ड अबाउट द प्रॉक्सी चेनिंग? सबको आइडिया है ये चीज प्रॉक्सी चेनिंग का? पता है प्रॉक्सी चेनिंग क्या होता है? यस और नो? हाँ सर, उस टॉर नेटवर्क के बारे में, जैसे टॉर नेटवर्क होता है। सपोज करो कि तुम दो टोरेंट सेकंड से, हाँ, टोरेंट से डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं से भी, तो क्या होता है? हम लोग एक नेटवर्क पकड़ते हैं अदर अदर कंट्री का IP एड्रेस। ये पकड़ लिए तुम्हारा कहीं, समझ लो केन्या, जिम्बाब्वे, अलग अलग कंट्री का पकड़ लिए हम IP एड्रेस। क्या हुआ? हम किसको हैक करें? इससे IP फिर चेंज होकर यहाँ जा रहा है, फिर इससे चेंज, प्रॉक्सी चेनिंग, हर जगह प्रॉक्सी लग रहा है, अलग अलग चेन बन के फिर हैक हो रहा है। ये जनरली अच्छे हैकर लोग क्यों करते थे प्रॉक्सी चेनिंग, मैं ये बताता हूँ। सपोज करो कि ये इंडिया है, ये USA है। अगर इंडिया का हैकर USA के सिस्टम को हैक करता है तो पहला चीज दिमाग रखता है कि USA का एनिमी कंट्री कौन कौन सा है, दुश्मन कंट्री कौन कौन सा है, उस कंट्री के IP एड्रेस को से प्रॉक्सी वो मारता है, ठीक है, ताकि एक इंफॉर्मेशन दे दे, दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं दे, दूसरा इंफॉर्मेशन दे, तीसरा इंफॉर्मेशन नहीं दे, चेनिंग बन गया। कितना इंफॉर्मेशन निकलेगा? यूएसए ये सिस्टम को पता लगेगा, अच्छा ये हैक किया है ये सिस्टम, ये जो कंट्री वहां का, यहाँ जाएगा पता करने तो बोलेगा नहीं इस कंट्री का बंदा ने हैक किया, फिर ये कंट्री, तब जाके धीरे धीरे इंडिया पे पहुंचेगा वो, राइट। तो जब एनिमी कंट्री सिलेक्ट करते हैं वो लोग इसलिए करते हैं ताकि हर एक को इन्फॉर्मेशन सही सही दे, वो तो गारंटी है नहीं, राइट। तो प्रॉक्सी चेनिंग, इसी को कहते थे प्रॉक्सी चेनिंग, चेन बन रहा है प्रॉक्सी का, राइट। तो इसी से कुछ तर्ज पे लाया गया कि एक प्राइवेट टनल क्यों ना बना दिया जाए, क्योंकि ये तो इलीगल एक्सेस के लिए होगा। लीगल एक्सेस के लिए सपोज कि रिमोटली सिस्टम एक है इंडिया में है, एक USA में है, सेम नेटवर्क पे काम करना है, हम बाहर डेटा लीक भी नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं? एक सिक्योर टनल क्रिएट कर देते हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क, प्रोटेक्टेड नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं, जो कि सिर्फ मेरा इस सिस्टम से इस सिस्टम के बीच में ही रहेगा, राइट, सिक्योर टनल। Sir, यस, sir, can you please repeat proxy chaining? अच्छा ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ।
देखो प्रॉक्सी चेनिंग एक्चुअली होता क्या है, सपोज करो ये तुम्हारा सिस्टम है। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है तुम लोग बताओ तो, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, तुम लोग बहुत दिए हो क्लास में, पता है ना व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सी? प्रॉक्सी मीन्स व्हाट? सर वो कुछ नकली। हाँ फर्जी, मतलब अटेंडेंस देते हो ना, प्रॉक्सी जिसको तुम लोग कहते हो, किसी के बदले कोई भी हाथ बोल दिया यस सर प्रेजेंट सर, राइट, तो वो प्रॉक्सी उसी को कहते हैं ना, यस और नो, उसको भी तो प्रॉक्सी कहते हैं। तो सपोज करो कि इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, तो बट मेरा तो आईपी कुछ और है अभी, ठीक है, बट हम क्या किए कि मेरे बदले कहेंगे तुम प्रॉक्सी दे दो भाई, मैं नहीं जा रहा, तू मेरे बदले बता दो, एक डिवाइस को बोल दिए कि तुम बता दो मेरे बारे, ठीक है, प्रॉक्सी दिया, ये मेरे जगह प्रॉक्सी देगा अभी, ठीक है, ये मेरे जगह प्रॉक्सी देगा। अब ये क्या किया भाई, हम भी नहीं जाएंगे, मेरे जगह तू और तू प्रॉक्सी दे दे, एक किसी को वो भेज दिया, वो भी किसी को भेज दिया, वो किसी को भेज दिया, इस तरीके से एक सिक्योर टनल बनता है, यही प्रॉक्सी का चेन बन गया, राइट, कि अपना आइडेंटिफिकेशन छिपाने के लिए हैकर लोग ये करते हैं, ठीक है। इंडिया में बैठा हुआ है पहला, सर ये आइडेंटिफिकेशन छिपाने के लिए वो क्या सेंड करते हैं? ये कुछ नहीं सेंड कुछ नहीं करते, आईपी यूज करते हैं। सपोज करो कि तुम किसी के सिस्टम को अभी एक्सेस करोगे डायरेक्टली, तो क्या लिखेगा वहां पे, किस कहाँ का आईपी जाएगा, इंडिया का आईपी जाएगा, यस और नो? तो हाँ। तुम डायरेक्टली एक्सेस करोगे तो तुम तो फंस जाओगे कि इंडिया क्या है, तुम्हारा सिस्टम सब कुछ इंफॉर्मेशन निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सी मारते हैं कि आईपी यूज किए कहीं और का प्रॉक्सी, सर्वर यूज किए तो केन्या का कर लिए, अभी नाम बोले थे ना, केन्या बोले थे, जिम्बाब्वे बोल दिए थे हम, बहुत सारा केन्या का, उसके थ्रू क्या किए, आईपी कहाँ का यूज किए, जिम्बाब्वे का आईपी, फिर अलग कंट्री का आईपी, फिर अलग कंट्री का आईपी, फिर यहां से एक्सेस होगा तुम्हारा एक्चुअल यूएसए का आईपी। इज दैट क्लियर? तो यूएसए का सिस्टम अगर हैक हुआ, ये खोजेगा छानबीन करेगा तो इसको कहाँ का आईपी एड्रेस मिलेगा, बताओ तो, इसको कहाँ का आईपी मिलेगा, इस कंट्री का, यस और नो? बट एक्चुअली में हैक कौन किया इस सिस्टम को, यहां से किया, इंडिया से, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन अगर दे भी दिया सही सही, तो नेक्स्ट कंट्री पे पास जाएगा, यहाँ शो करेगा, ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, अगर ये भी दे दिया तो ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो इसी को प्रॉक्सी चेनिंग कहते हैं, कि लगातार तो चेन बना रहे हैं हम लोग अलग अलग प्रॉक्सी का, राइट। तो वीपीएन कुछ इसी तर्ज के थ्रू आया है, मतलब एग्जैक्ट यही नहीं है, थोड़ा सा इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, एक कम्युनिकेशन चैनल ही बना लेते हैं, अलग सेपरेट चैनल, जो कि हमारे इंटरनेट पे ही होता है, ठीक है, बट वो अलग हट के होता है, हर कोई ये सिक्योर टनल एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा इंटरनेट क्या है, व्हाट इज द इंटरनेट, पब्लिक नेटवर्क, यस और नो? इंटरनेट इज पब्लिक नेटवर्क, बट यूजिंग दैट इंटरनेट we can create one protected network, that is called VPN, इसको हम लोग सिक्योर टनल भी कहते हैं। ये पूरा सिक्योर है, कुछ भी इंफॉर्मेशन इधर उधर नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है, फुल्ली नहीं हो सकता, मतलब नेटवर्किंग में ये करना टफ है, बट नहीं हो सकता, तुम लोग यही सोच के चलो, ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकता यहाँ से, फुल्ली सिक्योर। इज दैट क्लियर, यस और नो? वीपीएन में तो सर सिर्फ डिसएडवांटेज ही दिखा दे रहे हैं। डिसएडवांटेज किसे हुआ, सोच के देखो। क्योंकि सर वो लोग जब हैक कर रहे हैं, हाँ। तो सर वो जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन कैन ट्रैक द आईपी एड्रेस ऑफ द लास्ट कंट्री। अभी समझे नहीं कि वीपीएन आया है इस लॉजिक से आया है, ठीक है, बट वीपीएन में होता एक्चुअली में क्या है, इंटरनेट के बीच में एक सिक्योर चैनल बना दिया है, कम्युनिकेशन मीडियम बना दिया है, जो कि आईपी एड्रेस चेंज कर दिया है, हाँ, जो कि डायरेक्टली किससे कम्युनिकेटेड है, सोर्स सिस्टम एंड डेस्टिनेशन सिस्टम। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि सपोज एक ऑफिस तुम्हारे कंपनी का है कोलकाता में, दूसरा ऑफिस है अमेरिका में, राइट। तो अगर तुम पब्लिक नेटवर्क थ्रू यूज करके तुम अगर कम्युनिकेट करते हो आपस में दोनों ऑफिस में, तो सारे चीज लीक हो सकते हैं इजिली, एम आई राइट, यस और नो? तो इसी चीज से बचने के लिए क्या किया गया है कि अगर रिमोटली कोई भी नेटवर्क को एक्सेस करना हो, रिमोटली मींस व्हाट,
जो बता रहे हैं कि अदर कंट्री में है या अदर स्टेट में है, लाइक दिस। तो रिमोटली अगर किसी सिस्टम को, किसी नेटवर्क को एक्सेस करना है तो वी कैन यूज VPN। VPN क्या है तुम्हारा? एक प्रोटेक्टेड नेटवर्क है। VPN क्या है? प्रोटेक्टेड नेटवर्क है। ये पब्लिक नहीं है, याद रखना, प्रोटेक्टेड नेटवर्क है। ये सिक्योर टनल एक क्रिएट किया गया है तुम्हारा अपने ऑफिस से, कोलकाता का ऑफिस से USA के ऑफिस के बीच में। इज दैट क्लियर? अभी क्या सर ये जो प्रॉक्सी वाला प्रोसेस है ना, उसमें सर IP एड्रेस क्या इंडिया का नहीं चेंज होता क्या? नहीं, ये क्या होता है, देखो तुम्हारा IP एड्रेस तो चेंज कभी भी IP एड्रेस नहीं होता, तुम सर्वर यूज करते हो दूसरा। हाँ, तुम्हारा IP एड्रेस हाइड करते हो दूसरे से, चेंज कर सकते हो, कभी जल्दी चेंज नहीं होता। कितना बार जो चेंज दिखाता है ना, तुम गौर करना, एक प्रॉक्सी चेंजर होता है, सॉफ्टवेयर भी आता है। जब यूज करोगे तो तुम्हारे सिस्टम का IP बताएगा, प्लस कहाँ का सर्वर यूज कर रहा है वो भी बताएगा तुम्हारा, कि करेंटली यू आर यूजिंग USA सर्वर और करेंटली यू आर यूजिंग साउथ अफ्रीका सर्वर, लाइक दिस। लेकिन VPN कनेक्ट करने से क्या वो IP एड्रेस चेंज करता है? VPN IP एड्रेस से नहीं करता, क्या करता है, हाइड कर देता है, बाकी से इंटरनेट से हाइड कर देता है। समझ में आया? इंटरनेट तुम्हारा पब्लिक नेटवर्क है, उससे सिर्फ हाइड करता है सब चीज को, एक सिक्योर चैनल बना लेता है अपना, समझे, उसके थ्रू ही। क्योंकि सारा डिटेल्स तो तुम्हारे पास है ही ना रिमोट सिस्टम का, तुम तो हैक तो यहाँ कर नहीं रहे हो, राइट? तुम्हारे पास सारा डिटेल्स अवेलेबल है तुम्हारे रिमोट सिस्टम का, उसको यूज करके एक चैनल क्रिएट कर लेता है कि अब इसका डिटेल्स जो जानेगा वही ना एक्सेस करेगा। अब सोचो ये खुला आसमान है, खुला इंटरनेट है, उसके बीच में मेरा एक पाइप जा रहा है, ठीक है, पाइप जा रहा है, तो इसको कोई एक्सेस कैसे कर पाएगा? जब तक उसको पता नहीं रहेगा कैसे एक्सेस कर सकता है? पॉसिबल है? उसके बाद तो कोई डिटेल्स है नहीं, क्योंकि डिटेल्स तो मेरे पास है ना। इज दैट क्लियर नाउ? एनी डाउट? यही था तुम्हारा VPN। तो VPN के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखना, VPN के बारे में बहुत जगह पूछता है। और VPN क्या बताओ तो एडवांटेज क्या क्या हो सकता है? एक तो बता दिए, यही सिक्योर करता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड नेटवर्क बनाता है। और सिक्योर करने के लिए यहाँ पे इंक्रिप्शन भी यूज होता है। कोई इलीगल वेबसाइट पे हम घुस सकते हैं। अच्छा, ठीक। और कैसे इन करते हैं बताओ तो, इलीगल वेबसाइट पे कैसे इन करते हो? पहले VPN को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद वो वाले जो मतलब तो वो पेज को मैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि कैसे इन करता है वो, किस तरीके से, मैं ये कर रहा हूँ। सिक्योर टनल से घुसता है। नहीं, अच्छा, सिक्योर टनल तो वो उसका डेटा तो रखता है, हाइड करता है। वो भी क्या करता है, एक सिक्योर टनल बनाता है, ठीक है, सेम तरीके से, क्योंकि उसके पास पूरा है, इसका डिटेल्स पूरा है, वो क्रिएट कर ही सकता है। और एक चीज बहुत अच्छा चीज है, यहाँ पे बहुत कम लोग ये जानते हैं, यहाँ पे पता है इनक्रिप्शन एल्गोरिदम भी यूज होता है, ठीक है। वो एल्गोरिदम तुम जब रिसर्च करोगे इसके ऊपर तब तुम्हें पता लगेगा, ठीक है। ये एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू इनक्रिप्ट कर देता है तुम्हारे टनल, ठीक है। मतलब अगर कुछ ट्रांसमिट हो भी रहा है ना, जब तक इस मीडियम में है, जब तक इस चैनल में है, वो चेंज हो जाता है डेटा। इज दैट क्लियर? तो VPN क्या करता है, इनक्रिप्ट समझ में नहीं आया सर। कैन यू रिपीट सर? सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो कि ये मेरा सिस्टम है, ये तुम लोग में किसी एक का सिस्टम है। चलो मैं कुछ यहाँ पे डिटेल्स भेज रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सोचो AES यूज किया, अच्छा चलो AES DS नहीं बताते हैं, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज किया। सपोज हम हेलो भेजे हैं, कुछ भी बन गया, OLLEH बन गया सपोज, ठीक है, ये ट्रांसमिट हुआ। ये जरूरी नहीं है कि यही बनेगा, ठीक है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से बहुत कुछ चेंज होता है, ठीक है। इनक्रिप्ट हो गया, तो ये क्या एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम काम किया यहाँ पे, यस और नो? कोई एक एल्गोरिथम लगाया यहाँ पे ना इनक्रिप्ट करने के लिए, कि डाटा जो हम सेंड करने वाले हैं उसको चेंज कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे डिटेल्स दे दिए किस तरीके से वो डिक्रिप्ट करेगा उसको। एम आई राइट? यस और नो? ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन समझ में आता है ना? ठीक उसी तरीके से VPN जब क्रिएट होता है, VPN क्या करता है,
ये जो कम्युनिकेशन मीडियम है VPN जो करता है क्रिएट, ठीक है, उसको ही वो इनक्रिप्ट मार देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। किस लिए इनक्रिप्ट करता है? ताकि ये टनल का आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो किसी के थ्रू। इसके आइडेंटिटी को क्या करता है? इनक्रिप्ट मार देगा, ठीक है। इनक्रिप्ट मींस व्हाट? चेंज कर देता है। अब जब तक डिक्रिप्ट करने का तरीका पता नहीं हो किसी को, वो नहीं कर सकता है। यस और नो? हालांकि हो जाता है वो सब भी, तुमको भी पता है कि जितने भी इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम है, मोस्ट ऑफ द हैशिंग का कुछ चीज छोड़ के सारे का हैश ब्रेक किया जा सकता है, ऑलमोस्ट सबका। जितना टाइम ज्यादा लगता है, कम ज्यादा टाइम लगता है, हर एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का हैश ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली इस बट सिक्योर किया जाता है थ्रू उसके। तो क्या क्या इनक्रिप्ट कर दिया इसको, और डिक्रिप्ट की किसी के पास है नहीं कि कैसे डिक्रिप्ट करना है, तो क्या ये सिक्योर टनल बन गया। ये बहुत कम लोग जानता है कि VPN में, याद रखना हमेशा, VPN क्या करता है? इनक्रिप्ट करता है तुम्हारे ट्रैफिक को भी, ठीक है। इंटरनेट का ट्रैफिक जो होता है उसको भी इनक्रिप्ट करके रखता है। किस लिए इनक्रिप्ट करता है? ताकि उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, ये कौन सा टनल है, क्या इंफॉर्मेशन है, इसका डिस्क्लोज ना हो किसी से। इज दैट क्लियर? यस और नो? अभी आया समझ में? क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट। तो VPN कितने तरह का पढ़े हो तुम लोग, बताओ तो। अगर पूछा जाए तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ VPN, बोलो। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो कौन सा VPN यूज करते हो, बोलो। VPN यूज किए होगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट VPN यूज किया होगा, ये गारंटी है, चाहे कोई डाउनलोड करने के लिए ही क्यों ना हो। बट कौन सा VPN यूज किया, ध्यान से देखा नहीं कभी। देखो टाइप्स देख लो पहले क्या क्या होता है। एक तो तुम्हारा हो जाता है, हैव यू हर्ड अबाउट द इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट? नाम सुने हो इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट? व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रानेट? ये तो पता होगा सबको। इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या है? सिंपली इंट्रानेट। हम इंट्रानेट VPN का बात नहीं कर रहे, तुम इंट्रानेट बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रानेट? पब्लिक नेटवर्क। हाँ, पब्लिक नेटवर्क। इंट्रानेट मतलब क्या होता है? पब्लिक नेटवर्क? कौन बोला? एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे ही उसको एक्सेस कर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्क रहता है। हाँ, उसमें क्या होता है कि हम लोग उसके अंदर जो उस नेटवर्क में कनेक्टेड है तभी एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो VPN भी उस नाम से बनाया गया है, ठीक है। एक किया गया है इंट्रानेट VPN, जो हम लिखे हैं यहाँ पे, सेम चीज। एक है एक्स्ट्रानेट VPN, जनरली पूछा नहीं जाता है टाइप ऑफ VPN, बट हम बता दे रहे हैं, उसको चीज पूछा जा सकता है। ये हो गया। और होता है तुम्हारा एक्सेस VPN होता है, और एक तो एंड टू एंड होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइट टू साइट भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो मेनली VPN 4 तरह का होता है, इंट्रानेट VPN, एक्सट्रानेट VPN, एक्सेस VPN और एंड टू एंड VPN, और इसको साइट टू साइट VPN भी कहा जाता है, ठीक है। तो VPN तुम लोग को पता है, इसके बारे में अगर हो तो पढ़ लेना, जरा इजीली चीज है। ये सब पूछा कम जाता है, बहुत कम चांस होता है इसका पूछने का, ठीक है। मतलब मान के चलो कि नहीं ही पूछेगा, ठीक है। VPN से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ व्हाट इज VPN पता रखना और कैसे वो काम करता है, ठीक है। और देखो, प्लेसमेंट के लिए जरूरी टॉपिक्स जो तुम्हारा होगा नेटवर्किंग में, पहले तो OSI अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे। OSI कंप्लीट अच्छे से पता होना चाहिए। फिर IP एड्रेसिंग पार्ट, IP एड्रेसिंग पार्ट बताना चाहिए। नेटवर्क लेयर,
मैं ये 2 करवाऊंगा, अच्छे से करवा दूंगा ये दोनों, ठीक है। और थोड़ा सा लगेगा तुम्हारा, कभी कभी पूछता है डेटा न्यूक्लियर का कुछ क्वेश्चंस, ये और तुम लोग के लिए असाइनमेंट रहेगा एप्लीकेशन लेयर में जितने प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, किसका क्या काम है वो देख के पढ़ लेना है, ठीक है। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर में, किसका क्या काम है वो तुम पढ़ लोगे, थ्योरेटिकल चीज है वो तुम लोग खुद से पढ़ लोगे। बाकी ये 3 चीज जितना टाइम है उसमें हम अच्छे से समझा देंगे कैसे क्या, जितना क्वेश्चंस पूछा जाता है सारा हम लोग डिस्कस कर देंगे यहाँ पे। और ये बहुत जरूरी पड़ने वाला है कुछ कंपनी में, अगर एज ए नेटवर्क डोमेन के लिए तुम जाओगे इंटरव्यू देने, जो एचपी में भी होता है, वीएम में भी होता है, एक डोमेन आता है, कॉग्निजेंट में होता है नेटवर्किंग डोमेन का एक, अगर उसमें इंटरव्यू देते हो तो ये पार्ट लगेगा ही लगेगा अच्छे से, ठीक है। और ये कर लेना अच्छे से, जैसे कि HTTP का क्या यूज है, HTTPS का क्या यूज है, ठीक है, जितने भी प्रोटोकॉल्स है उसका क्या यूजेज है, DNS का क्या काम है, ये सब देख लेना है बेसिक्स, ठीक है। बाकी हम हब के बारे में पूछा जा सकता है, स्विच, ठीक है, रिपीटर, ब्रिज, गेटवे, फायरवॉल, ठीक है, ओके। ये सारा डिवाइस के बारे में हम क्लास खत्म होते तक सब समझ में आ जाएगा। हब स्विच समझ में आ गया क्या काम करता है, रिपीटर समझ में आ गया है तुम लोग को, ब्रिज भी यूज करके दिखा देंगे, गेटवे और फायरवॉल समझा देंगे। फायरवॉल तो तुम लोग जानते हो, व्हाट डू मीन बाय फायरवॉल, फायरवॉल का क्या यूज है बताओ तो, टेल मी। प्रोटेक्ट करना, मतलब कोई किससे प्रोटेक्ट करना, वायरस, मतलब इंटरनेट का थ्रू कोई जानकारी वायरस। अच्छा, तो काम किस तरीके से करता है फायरवॉल, कैसे आइडेंटिफाई करता है कि मैलिशियस फाइल है या नहीं है, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोले हम। सर इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी कनेक्शन है उसको मॉनिटर कर सकते हैं उस हिसाब से। अच्छा देखो, ये सपोज करो तुम्हारा एक नेटवर्क है, मैं ये मान लेता हूँ तुम्हारा एक नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर नेटवर्क तो बनाना तुमको ही पता कैसे बनता है। अब इस नेटवर्क का मैं यहाँ पे फायरवॉल बना, फायरवॉल, ठीक है। तो पहले नंबर ये बताओ ये फायरवॉल है क्या, कैसा डिवाइस है, ये हार्डवेयर डिवाइस होगा या सॉफ्टवेयर डिवाइस होगा, ये बताओ। सॉफ्टवेयर से दोनों हो सकता है, यही तो एक चीज इसमें खासियत है फायरवॉल में। फायरवॉल हार्डवेयर डिवाइस भी आता है, पता है तुम्हें, ठीक है। तो फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकता है, ठीक है, याद रखना ये चीज। इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, किसको, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को। क्या करता है ये, प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, जितने भी अनऑथराइज्ड एक्सेस रहते हैं हेलो हेलो उससे सर। प्रोटेक्ट, यस टेल मी। सर हार्डवेयर फायरवॉल कहाँ पे यूज होता है? क्या चीज, वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखो, सर्वर में जब लगाया जाता है ना, ठीक है, तो सर्वर सपोज इंस्टॉलेशन कहीं हुआ, ठीक है, उस केस में बोथ साइड फायरवॉल यूज होता है, ठीक है। तो एक वहां पे लगाया जाता है, खुद सोचो सर्वर तुम इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तब कहां से लाओगे, राइट। ओके सर, समझ में आया, ओके। हाँ। तो फायरवॉल हमको क्या करता है, मेनली फायरवॉल का काम क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमारे नेटवर्क को बचाता है, यही ना। अब ये काम कैसे करता है, हाउ फायरवॉल वर्क्स, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता फायरवॉल का काम क्या है, वो सबको पता होता है, ठीक है। इतना बार फायरवॉल ब्लॉक का नोटिफिकेशन आता है लैपटॉप में कि 90% पीपल जानते हैं कि फायरवॉल क्या होता है। ये काम कैसे करता है, इंटरव्यू में वो पूछा जाता है, बताओ किस तरीके से काम करता है, कोई आइडिया है किसी को। सर जैसे कि बाहर से कोई सिक्योरिटी रूल्स वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है किसी कनेक्शन को इनगोइंग या आउटगोइंग कनेक्शन को अलाउ करेगा कि नहीं। अच्छा, तो किस बेसिस पे वो करता है, सिक्योरिटी रूल्स जो उसमें डाला गया है या फिर इम्प्लीमेंट जो किया गया है, जो इम्प्लीमेंट हाँ। किया गया है, राइट।
अच्छा, गुड। और कोई कुछ आइडिया? सर जैसे कि कोई भी ट्रैफिक अंदर मतलब कि सिस्टम से बाहर जाना चाहिए, बाहर से कोई ट्रैफिक सिस्टम में नहीं आना चाहिए। अच्छा, जैसे कंप्यूटर है, कोई वायरस है या कोई हाँ सिस्टम, कोई हैकर है, तो बाहर से सिस्टम में एक्सेस मांगेगा तो वो हाँ ब्लॉक कर देगा फायरवॉल। हाँ। तो देखो, टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो ये फेमस है कि क्या किस बेसिस पे काम करता है। तो मेनली 3 मेथड है इसका, ठीक है। एक तो होता है प्रॉक्सी सर्विस, इसके बेसिस पे उस डिसाइड करता है, ठीक है, कहां से प्रॉक्सी आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पैकेट फिल्टरिंग करके, ठीक है। थर्ड, इंस्पेक्शन, ठीक है। मेनली इसी चीज पे डिपेंड करता है कि फायरवॉल काम करता है। समझ में आया? पहला तो ट्रैफिक देख लिया वो कि ट्रैफिक इन या आउट किस तरीके का ट्रैफिक है, ठीक है। उसके बाद पैकेट फिल्टर करेगा। पैकेट फिल्टरिंग किस लिए करता है? आइडेंटिफाई करने के लिए कि सस्पिशियस पैकेट तो नहीं है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं है, उसको ब्लॉक करने में यूज होता है, ठीक है। प्रॉक्सी सर्विस में पता है कि लिमिटेड प्रॉक्सी से आ सकता है रिक्वेस्ट, और इंस्पेक्शन करके तभी वो एक्सेस देता है। यही 3 चीज मेनली इंप्लीमेंट किया रहता है हर एक फायरवॉल में, उसका कुछ रूल रेगुलेशंस रहते हैं उसके बेसिस पे। इज दैट क्लियर? और क्या होता है, क्योंकि फायरवॉल मेनली क्या है, प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर ही तो काम करता है। सोच के देखो, नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो फिर से एक छोटा सा डायग्राम बनाते, शायद समझ में अच्छे से आ जाएगा। सपोज करो ये तुम्हारा फायरवॉल है, फायरवॉल है, ठीक है। और ये मेरा लैपटॉप है, चलो ये मेरा लैपटॉप है, ये फायरवॉल है, ठीक है। हम कुछ भी गूगल सर्च किए, ठीक है। सपोज गूगल सर्च में हम किए, लिख के नेटवर्किंग। जैसे तुम अपने सिस्टम से गूगल सर्च करते हो तो रिक्वेस्ट कहां जाएगा? टेल मी, रिक्वेस्ट कहां जाएगा? बोलो। डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। क्या लिखे? डीएमएस लिखे, गूगल पे जा रहा है तो डीएनएस से टेबल से निकलेगा गूगल का आईपी एड्रेस। उसके बाद कहां रिक्वेस्ट जाएगा? सीधे गूगल गूगल सर्वर के सर्वर में जाएगा ना? यस और नो? यस सर। चलो चला गया, हम मान लेते हैं गूगल में रिक्वेस्ट चला गया। अब यहाँ रिक्वेस्ट आया, अब ये आइडेंटिफाई करेगा अपना, बहुत सारा प्रोसेस था जो कि नेक्स्ट क्लास में तुमको समझाएंगे कि किस तरीके से नेटवर्क पे काम करता है। जब आईपी एड्रेसिंग स्टार्ट करेंगे तब तो यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, हाँ या ना। ये रिस्पॉन्स भी किसके थ्रू आएगा? फायरवॉल के थ्रू ही आएगा। फिर हमारे सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन आएगा। यही रिक्वेस्ट है ना, मेनली तो यही चीज है। तो ये जो फायरवॉल है, जो भी ट्रैफिक है इन और आउट दोनों को कुछ रूल के अकॉर्डिंग ये क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है। इज दैट क्लियर? तो इंस्पेक्शन कहां पे हो रहा है? यहाँ पे। इज दैट क्लियर? अब अगर सपोज करो कोई भी हैकर, कोई भी थर्ड पार्टी अगर इसको एक्सेस करना चाह रहा है, अंदर जाना चाह रहा है, तो उसको यहीं पे ये रोक देगा, क्योंकि ये क्या अनऑथराइज्ड एक्सेस आ रहा है, ठीक है। इसको फायरवॉल क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। तो हमेशा यही 3 रूल पे इसमें जो इम्प्लीमेंटेड रहता है, यही रूल रहता है इम्प्लीमेंटेड। पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्विस, इंस्पेक्शन। इज दैट क्लियर नाउ? तो फायरवॉल हम लोग को क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कहां से? अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है हम लोग को। इज दैट क्लियर नाउ? एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। फायरवॉल और एंटीवायरस का वो तो काम ही तो सेम है। एंटीवायरस और फायरवॉल का फिर से डिफरेंस क्या बोलो, है? फिर से बोलो। एंटीवायरस और फायरवॉल का अंदर डिफरेंस क्या है? देखो, तुम्हारा एंटीवायरस जो होता है तुम्हारे सिस्टम में होता है, राइट? होता है ना कि एंटीवायरस जब तुम डाले तुम अपने सिस्टम में, तो एंटीवायरस काम कैसे करता है ये देखो। वो कुछ मालवेयर के ऊपर काम करता है। एंटीवायरस हमेशा क्या होता है? मालवेयर के ऊपर काम करता है, राइट? और
अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या होता है? फायरवॉल किससे बचाता है? कि कोई एक्सेस ना करे अनऑथराइज हमारे सिस्टम को। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? ये मालवेयर से बचा रहा है, मतलब जैसे ट्रोजन हॉर्स, जब ये सब नाम सुने मालवेयर का, वो सब मालवेयर से बचाता है तुम्हारा एंटीवायरस, राइट। अनऑथराइज्ड एक्सेस से कभी भी एंटीवायरस नहीं बचाता है मुझे। इज दैट क्लियर? वो काम है फायरवॉल का तुम्हारा। भैया है समझ में? हाँ क्लियरली विजुअलाइज करो। नेटवर्किंग में जब तक विजुअलाइज खुद से नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, भूल जाओ। वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है नेटवर्क प्रोटेक्शन, वो क्या होता है? हाँ, नेटवर्क प्रोटेक्शन होता है कि हम अपने नेटवर्क को प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी एक्सेस करेगा तो तुमसे एक बार पूछेगा कि परमिशन देना है या नहीं देना है। समझे? वही तो सर फायरवॉल का ही तो काम कर रहा है। वो तो फायरवॉल का काम नहीं कर रहा है, फायरवॉल को वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो सर्विस देने के लिए। अच्छा, समझा? एंटीवायरस वो रिक्वेस्ट कर रहा है फायरवॉल को कि तुमको ये सर्विस चाहिए। अब तुम ऐसा तो सॉफ्टवेयर बना ही सकते हो जो तुम्हारे सिस्टम को कंट्रोल करे। इज दैट क्लियर? यस सर। तो और भी फायरवॉल के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्ट, उतना तुम लोग को लगेगा नहीं, थोड़ा सा देख लेना। यही सब नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से नेटवर्क पे काम करते हैं वो बता देंगे, और गेटवे बता के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, सो किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव। We have done. Give your attendance in chat box and then leave.